Hello everyone, welcome back to Easy Ganit by Samir. This is Samir Sadana, and in this video we are going to talk about DILR strategy for IFT paper, guys. Right, one of the most amazing section, right, and I would say second most scoring section in IFT after VARC. This is that particular section which you need to take very seriously, and you need to allocate more time to this, right? So in this video today we'll be talking about the last 3 years trend, कहाँ से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको टारगेट करने चाहिए, टाइम का एलोकेशन DLR सेक्शन में क्या रहना चाहिए. So these are the basic points we will be discussing in this video, right? And you'll be able to formulate a best strategy to tackle this particular section after watching the content of this video, guys. Now, before I start with this particular section, right, and the topics which are the important for DILR section, I just want all of you to know कि DILR section के अंदर ना, right, the why I'm saying the second most scoring section, reason being इसका weightage compared to quant ज़्यादा रहता है, and you guys can target more number of question in this. Reason being the level of difficulty compared to quant is easy and they're very standard type of questions, right, जो आप बहुत easily basics भी अगर आपने अच्छे से कर रखे हैं तो आप टारगेट कर सकते हो, right? As you can see that ये हमारा ओवरऑल स्ट्रेटेजी है जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया. ओवरऑल एग्जाम का पैटर्न है, LRDA में 30 क्वेश्चन है विच इज 5 मोर देन क्वांट सेक्शन, राइट, एंड पर क्वेश्चन 3 मार्क्स, 90 मार्क्स का सेक्शन है. आरसी में 35 सबसे ज्यादा है. और सेक्शन कट ऑफ की अगर हम बात करें LRDA सेक्शन में तो दे आर टोटल sectional cutoff is 13 marks. It doesn't mean कि 13 पे आपको कॉल आ जाएगा. 13 is a minimum marks that is required if you want to consider, if you are supposed to be considered for the shortlisting, right? So 13 से नीचे तो they will not even look at your overall marks, right? So minimum cutoff ये last year का है. इससे ज़्यादा भी जा सकता है. That means sectional cutoff is not a fight here. अगर आप 4-5 questions भी solve कर लोगे, you will be able to easily clear the cutoff, right? Sectional cutoff clear हो जाएगा. Talking about कितना time allocate करना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे, right? So DILR में हम 2 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे पूरे सेक्शन को. One is DI, one is LR. Data interpretation के अंदर the trend is constant, guys. Look at it, right? आप चार्ट पे देख सकते हो, ट्रेंड कांस्टेंट है. डेटा टेबल, लाइन ग्राफ, बार चार्ट, पाई चार्ट, पिछले 3 साल से क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट? और स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस, बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कैन बी डन इवन विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर. सम क्वेश्चंस आर कैलकुलेटिव, सम क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड with an approximation method or by visualization also. So the approach of tackling DI section is slightly different compared to the CAT. CAT में आप basics पढ़ते हो, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रहता है कैट में. जैसे अगर हम कैट के लास्ट 5 ईयर के सेट्स की बात करें तो उसमें जो सेट आते हैं DI के, देर मोर कॉन्सेप्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं, राइट? कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होता है, हाई लेवल का रहता है कॉन्सेप्ट जनरली, राइट? 2021 में तो खैर काफ़ी ईजी था, बट इफ़ यू लुक एट द 17 सेट ऑफ DI परसेंटेज के जो सेट देखो, या 19 के या 2020 में जो सेट है, उनमें कॉन्सेप्ट बेस्ड रहता है, वेटेड एवरेज रेशियोज, परसेंटेज, राइट, एडवांस लेवल पे. But DI part of IFT is not like CAT. They are more calculative. Concepts वही हैं, percentage based, but they are basics. They are more calculative. ग्राफ ज़्यादा रहते हैं, डेटा थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है. दे आर ईजी टू अंडरस्टैंड. आपको टाइम नहीं लगेगा सेट को अंडरस्टैंड करने में कि ग्राफ को रीड कैसे करना है. दैट वुड बी वेरी ईजी फॉर यू कि कहाँ से डेटा लेना है, क्या करना है, राइट? क्वेश्चन भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. दे कैन बी मोर कैलकुलेटिव, राइट, जिसमें आपको ग्राफ में से बार डेटा लेना, कॉम्प्लेक्स डेटा लेना पड़ सकता है. सो अप्रॉक्सीमेशन इज समथिंग दैट कैन रियली हेल्प इन DI part of IFT, guys. But this is a scoring section because level of difficulty is easy. आप बहुत easily अगर ऐसे सेट को प्रैक्टिस कर लो, राइट, जिस IFT में जिस टाइप का DI सेट आता है जिसमें कैलकुलेशन और अप्रॉक्सीमेशन बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, तो आप बहुत अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस DI के टैकल कर सकते हो, इजीली सोल्व कर सकते हो, राइट? ठीक है बच्चों. सो यू कैन सी दैट DI से अगर हम देखो तो मिनिमम 16 क्वेश्चंस तो आप DI के ही टारगेट कर सकते हो, राइट? यहाँ से तो 16 में से एटलीस्ट 3 सेट भी अगर मैं टारगेट करूँ, 4 सेट में से 3 सेट भी टारगेट करूँ, स्टिल आई विल बी एबल टू सोल्व 12 क्वेश्चंस. और टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा आपको DI सेक्शन में, एज we as the amount of time we generally spend in solving one set of CAT, right? Level of difficulty is basic, guys, right? And the best source where you should be studying DI for IFT, the best source of material, guys, जो बहुत ज़्यादा relevant भी है, right? That is the previous year questions. अगर आप last के 6-7 years के questions भी उठाओगे, you'll be having more than 60-70 sets.
राइट ऑफ IFT पेपर लास्ट के इनफेक्ट 10 ईयर्स के IFT के पेपर के DI सेट्स उठा लो आप, आपके 50-60 सेट्स आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे, विच इज मोर देन सफिशिएंट। आपको बेसिक्स आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं तो यू गाइस कैन इजीली डू इट, राइट। तो बेस्ट सोर्सेज टू गो फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आपको हाईली रेलेवेंट सेट मिलेंगे, राइट। उन्हीं सेट को सोल्व करो, वैसे ही सेट पेपर में रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं, राइट। टॉकिंग अबाउट द LR, लॉजिकल रीजनिंग is something which is different, completely different from CAT. हाँ, इसमें जो जनरली टॉपिक्स रहते हैं, राइट, देयर सम टॉपिक्स विच आर सेम एज ऑफ कैट, जैसे गेम्स एंड टूर्नामेंट का इजी सेट इसके अंदर आता है, राइट। सेट थ्योरी आपने कैट में पढ़ा होगा, रैंकिंग भी आपने कैट में पढ़ा है, बट कुछ ऐसे टॉपिक जो आप कैट में जनरली नहीं पढ़ते हैं, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, सीरीज, नंबर सीरीज और नॉन वर्बल रीजनिंग, राइट। और क्लॉक्स और कैलेंडर हम इज अ पार्ट ऑफ कैट सिलेबस, बट जनरली बच्चे छोड़ देते हैं, बट ऐसे ये टॉपिक्स आपको ये नहीं छोड़ने, बिकॉज कैलेंडर के क्वेश्चन, क्लॉक्स के क्वेश्चन, इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन, इन सब में से एक एक दो क्वेश्चन आपको IFT के पेपर में देखने को मिलेंगे। This is a scoring section, and because these questions are generally easy and you guys can solve it in less amount of time, so you should definitely do these topics of LR in addition to the preparation of your CAT exam. तो CAT की प्रिपरेशन से एज इट इज आप IFT में नहीं जा सकते, आपको कुछ एडिशनल टॉपिक्स करने पड़ेंगे। सो हर साल अदर्स टॉपिक में से, मिसलेनियस में से 4 और 6 क्वेश्चंस आपको ये सभी टॉपिक्स में मिलेंगे, राइट। इनपुट आउटपुट, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशंस, right, non-verbal reasoning, clocks and calendar. These are the topics that you have to do for your LR section, guys, right? और सिटिंग अरेंजमेंट भी पढ़ो। सिटिंग अरेंजमेंट तो हर साल आप देखो, सिटिंग अरेंजमेंट में हर साल 4 हर साल 4 क्वेश्चन आ रहा है, राइट। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन था सिटिंग अरेंजमेंट का, उसमें ब्लड रिलेशन भी कंबाइन था, तो ऐसे टॉपिक्स कंबाइन करके भी आपको आ सकता है। रैंकिंग बेस्ड पजल होगी, रैंकिंग तो चलो ईजी होता है, कैट में आपने प्रैक्टिस किया होगा। सेट थ्योरी यू मस्ट हैव प्रैक्टिस, राइट। सो देयर सम एडिशनल टॉपिक्स दैट यू नीड टू डू, राइट, एंड दे आर ऑल्सो वेरी स्कोरिंग इन IFT DLR इज द टॉपिक्स लाइक टॉपिक्स ऑफ रीजनिंग एबिलिटी, जो आप NMAT के लिए पढ़ोगे, स्नैप के लिए पढ़ोगे, वही टॉपिक्स आपको IFT के लिए भी एडिशन में पढ़ने पड़ेंगे बच्चों, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, दिस इज द ट्रेंड of the topics, right, कौन कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चंस करना है। Now the next thing is we need to talk about is how much time you should be allocating. See, there will be total 30 questions in DLR section, right? क्वांट में हमने डिसाइड किया कि 30 मिनट्स तो हमें देना है, क्योंकि इजी क्वेश्चंस करने हैं, और 10 के अराउंड अपने को क्वेश्चंस वहां से टारगेट करना चाहिए 30 मिनट्स के अंदर, राइट। टॉकिंग अबाउट DLR लेवल ऑफ डिफिकल्टी में इजी से मॉडरेट रहता है, बट इट डजंट मीन कि 30 के 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, बिकॉज इफ यू ट्राई टू डू 30 क्वेश्चंस, you'll be spending more time and then you'll be losing marks in VRC section, because फिर आप VRC के लिए उतना टाइम नहीं दे पाओगे, राइट। सो टाइमिंग इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन IFT, एंड दैट्स वाई स्ट्रेटेजी इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो DLR आई वुड सजेस्ट कि आपको मिनिमम से मिनिमम 40 मिनट्स का टाइम देना चाहिए, क्योंकि आपको इसमें DI भी में से भी इजी क्वेश्चंस मिलेंगे और LR में से भी इजी क्वेश्चंस मिलेंगे, और क्वेश्चंस भी ज़्यादा है, तो 40 मिनट लगा के कम से कम आपको 18 to 20 to 25 क्वेश्चंस की रेंज में नंबर ऑफ क्वेश्चंस टारगेट करने चाहिए। मिनिमम 40 मिनट्स में 18 क्वेश्चंस का आपका टारगेट होना चाहिए, और मैक्सिमम 22 से 25 अगर आप कर ले तो बहुत अच्छी बात है, राइट। 20 to 25 क्वेश्चंस अगर आप 40 मिनट्स में करते हो, स्पीड अच्छी है, DI आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, जल्दी आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो, तो यस 20 to 25 number of questions are possible in 40 minutes in DLR, in DLR section, if you look at the level of difficulty of the previous year papers, guys, right? ठीक है, so this is your DLR section. This is how you are supposed to prepare for it. In the next video, I will be talking about the VRC, and then next to that, we will be discussing GK section, guys. How you should be preparing for GK, क्या section cut off रहता है, and finally we'll be having a one final video जिसमें हम score versus percentile की बात करेंगे. This is the third video of IFT strategy which I am making specifically for DLR section, guys. I hope this must have given you a basic idea, the topics that you are supposed to study and time that you should be allocating. और इसी time allocation के साथ आप mock papers भी दो, और टारगेट करो 20 से 20 प्लस क्वेश्चंस करने का 40 मिनट्स के अंदर, सो दैट कि आपको पेपर में आप यही एज इट इज सेम स्ट्रैटेजी फॉलो कर सको, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, गाइस। सी इन द नेक्स्ट पार्ट वेयर विल बी टॉकिंग अबाउट द VRC सेक्शन, द ट्रेंड ऑफ द लास्ट 3 years of VRC section, and the other important points for VRC. Thank you. Take care in the next.